Yes, sir. Just wanted to thank you for bringing this. I really don't know how to hold on my tears, but thank you for bringing the real story of Kashmiri Pandits onto the screen. Nobody ever has done that. We have lived through this today, to be honest. I don't know how I'm going to get sleep. And we have been living through this crisis for last almost 35 years. I was just in 10 when this episode happened. And thank you so much. I think what you have shown is absolutely what is true and what has happened to us as a community. And you have tried your best to portray the real side of it. I don't think there's even a small amount of exaggeration you have put in there. You have really put the reality out there. And we have seen many of our friends getting killed, many of our family members getting killed by the terrorists. But I think the way you have depicted is really a true story of an Indian, of a Kashmiri Pandit. I think you have done a marvelous job in really getting the real emotions out there. And I personally have got parents. My father is a dementia, and thanks to the episode in Kashmir, it got into that situation. You must have related with Anupam Kher. I could relate with every part of the story. We ran in the trucks, we ran out in buses. Many of my friends could not even get evacuated in time. It really has been a painful time. And thanks for bringing out Bala Sahib Thackeray's support to us. I'm one of the students. And today a student. I have really, whatever I have achieved in my career is because of him. I got engineering seat in Pune. I did my engineering here, I did my post-graduation here. And I owe it to him. And I owe it to all the community members because of which I'm standing tall here. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Actually, what you said, when we started this film, so we are a very small production house. So very small team of Pallavi, me, a couple of more people, some researchers. We sat down and we said, what is it that we are trying to do? Are we just trying to make a film on Kashmir and say, this is what it is? But very soon we realized after we spoke to everybody, there's a myth which has been created. And even when you were talking, it's very subconsciously that myth has become part of our reality. And all of us have started thinking like that. And so we said, let's break this. Let's break this paradigm so that subconsciously we carry this baggage. We always wonder, where is the other side of the story? If you see a lot of intellectuals and critics, they'll say, where is the other side of the story? Why people are looking for the other side of the story in case of Kashmir genocide? Why nobody in the world wants to know the other side of the Holocaust? When a Holocaust movie is made, nobody asks you, why have you made this film? But wherever I go, whichever journalist in whichever city, every single journalist necessarily asks, why have you made this film? Nobody asks a love story, why you have made this. Nobody asks a mafia smuggler's film, why have you made this? But when you are making a film based on truth, everybody asks, not because their intentions are wrong, because our minds have got wired like that. So we said we'll break this wiring and we will rewire the subconscious of the society. Thank you so much, sir, making us aware of all these things. Basically, I am Shanaupuri Maratha, belong to the Bhumi of Shivaji. I am married to Kashmiri Pandit. We know each other since last 25 years. जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ स्टूडेंट थी तब हम लोग मिले हैं. जब ये यंग थे, इनके डैडी तब कैंसर पेशेंट थे, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रोमा. And that is the one thing which made us very closer. मैं वो सारी चीज़ों को अभी आँखों से देख रही हूँ. 16 साल हो गए हमारी मैरिज को. मेरी 14 साल की बेटी है. Now it's my responsibility to make her aware of all these things because I am also Hindu, belong to a Bhumi of Shivaji, and I have that pride of Bala Sahib Thackeray कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी सारा योगदान दिया. तो वो एक चीज़ मेरे माइंड में है. अभी हमारा बच्चों का जो जनरेशन आगे आएगा तो हमारी
सारी पेरेंट्स जो कश्मीरी पंडित है और जो जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, आइदर दे आर गुजराती, महाराष्ट्रियंस, सो वी ऑल आर हिंदू, दैट इज द वन स्ट्रिंग बिटवीन ऑल ऑफ अस. तो हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि ये चीज़ें हम अपने बच्चों में, ये संस्कार, ये जो नॉलेज है वो कैसे इनहेरिट करें और बच्चों को बढ़ा करके वही कश्मीरी पंडितों की जो हेरिटेज है उसको अच्छी तरह से साबित करके उसका संगोपन करें. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आई एम वेरी प्राउड ऑफ. वो पीछे there is a young somebody. Yeah. Just one thing again, I want to Yeah. thank you. It's touched everybody. अभी यहाँ पे आप देखेंगे majority of people would be Kashmiris, or everyone might be, one of them would be an engineer. And its credit goes to Bala Saab, and yeah, thank you. Vivek ji, Sorry, can I just interrupt you? Yeah. There's one thing I would like to say. During all the research that we did, which was terrible and really heart-wrenching, there's one thing which I want to stand here with extreme pride and tell you, that the entire Kashmiri Pandit community is a highly literate community. And every single person is educated. They have not differentiated between girls and boys. You will see that there are no cases of female infanticide in the Kashmiri Pandit community, and I am saying this as a woman with extreme pride today. So I want to say thanks that there is somebody who's taking care of educating our generations and not making us go through gender bias. So thanks to the community for that. विवेक जी एंड पल्लवी जी, पूरे 5 लाख कश्मीरी पंडित की तरफ से मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ मन से, ये पिक्चर बनाने के लिए. आज तक मेरी लाइफ में कश्मीर के बारे में जब मैं सोचता था, 2 कश्मीरी पंडितों के बारे में रहा था, तो 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट थे. एक जगमोहन, जिसने उस समय हमको बचाया, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते आज, मैं आपके सामने आज नहीं होता. फर्स्ट पर्सन. सेकंड इज बाला साहब ठाकरे, because of him we are all here in Pune, right? And from today onwards it will be Vivek and पल्लवी जी. मुझे याद आ रहा है महाभारत का वो किस्सा जहाँ पे द्रौपदी अपने बाल खुले छोड़ती थी, बोलती थी जब तक ये बाल खुले रहेंगे तब तक आपको अपना लक्ष्य याद आएगा. आज के बाद जब हम ये अपनी ये कश्मीर फाइल्स देखेंगे और ये हमको याद दिला देगी कि हमारा लक्ष्य क्या है. हर एक कश्मीरी पंडित वर्ल्ड में जहाँ पे भी है उसको ये याद दिला देगा कि उसकी मातृभूमि उसको कॉल कर रही है. एंड दिस विल एक्ट एज द द्रौपदी के खुले हुए बाल हमारे लिए. थैंक्स फॉर मेकिंग द ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. That's good. Yeah. That's young. And we'll have a cut-off time because I am told that we have to vacate what time? Around 10:20, right? Good evening, sir. I am very, very emotional. This is Swarali from Indian Express, but today I don't want to ask you any question as a journalist. I am not a Kashmiri Pandit, I want to start with it, but this film has made me think that, in India when Article 370 was scrapped, there were people who asked why is it scrapped. Are we yet not satisfied after this film? Why is it scrapped? Do we get our answer? Why can't we understand what has happened there? This is beyond words, and I just want to ask you a question that you have been filming and your entire crew have been projecting what trauma they have gone through, but like while filming, what was the trauma you have gone through? Because we being from media, we understand, like we report things from close and we understand to produce something like this, it takes a toll. Like I know when खिलजी की फिल्म बनी थी, which film was that? पद्मावत. तो लोग रणवीर सिंह को पूछ रहे थे कि how do you feel after coming out of the role? उसको पूछ रहे थे जिसने जुल्म किया था, बट हम उनको क्यों नहीं पूछते जिन पे जुल्म हुआ है. हम उनको क्यों नहीं पूछते जो ऐसी फिल्म्स बनाते हैं. So how was your experience when you made this film, when you shoot that scene when the lady was cut within, and I belong to Gujarat, हमने देखा है 2002 में क्या हुआ था. So we can relate to it. हमने वो डर देखा है, लोग तलवार लेके सड़कों पे घूम रहे थे, and we were frightened, we were scared to go out. We have seen, people always say that
you know, minorities, but why don't we understand? State minority alag hota hai. So what were your feelings and what did you went through when you produce a film like this? Of course it's out in media that threats आए, but mental trauma क्या था? आपने इन लोगों का सब दिखाया, but what were entire crew? This is not for just one person. किस mental trauma से आप गुजरे और इसमें से आपका personal experience क्या रहा है? And thank you so much for making such a film. ओ माय गॉड, यानी हमने 4 साल पहले, आपका नाम क्या है? स्वराली, बड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल नेम। हमने जब शुरू किया था ये 2018 में, तब से हमें ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हम कर क्या रहे हैं। एक मैंने जैसे आपको बोला, वी जस्ट बिकेम द मीडियम, हम चलते गए यहाँ तक कि पल्लवी ने कहा नहीं कि हमारे 2 बच्चे हैं जो अभी 18 क्रॉस किया था उनने, शी सेड कि इन दोनों को भी इसमें लगाएंगे। एंड मैंने कहा कश्मीर लेके जाएंगे, इतना डेंजर है, इतनी सारी आर्मी चलती है और इट्स अ वेरी टफ फिल्म, क्योंकि वी डिडंट हैव मनीज। तो हम लोग सिर्फ मैं पल्लवी मैं खुद ड्राइव करता रहा पूरे टाइम, अमेरिका में, यूके में, इंडिया में, सब जगह पे हम लोग यानी सस्ता खाना खा के हमने बनाई है ये फिल्म। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग यानी बस हम और पल्लवी स्टारबक्स में जाते थे, चाय लेते थे और 2-3 घंटे ड्राइव करते थे, इधर से उधर, सुबह उठते थे, रात तक ड्राइव ही करते रहते थे। उसके बाद फिल्म शुरू हुई लगातार, फिर कोविड आया, फिर दुनिया भर की थ्रेट्स आई, फतवे हुए, ये हुआ, पर हम आगे बढ़ते गए, हम रुके नहीं कभी। अभी तुमने बोल सकता हूँ, छोटी होगी मुझसे काफ़ी, अभी तुमने मुझसे ये सवाल पूछा तो थोड़ा सा मैं पहली बार मुझे एकदम से याद आ गया सब। सो आई डोंट थिंक आई विल बी एवर बी द सेम पर्सन अगेन। और मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये लोगों ने तो जिए हैं कैरेक्टर्स, इनसे पूछिए हाउ डिड दे फील। आप बताइए। विवेक जी, I have very important। हम कश्मीरी समाज के एक्टिविस्ट हैं। आपने जो दर्द की परिभाषा यहाँ पे दिखाई, दिस इज पार्ट ऑफ आवर एक्साइल्ड कॉन्शियसनेस। वी रिलेट टू दिस जेंटलमैन वेरी मच, बिकॉज जहाँ दर्द है, वी हैव ए रेजिस्टेंस ऑल्सो, वी हैव ए प्रतिकार ऑल्सो। What our friends spoke about going back, we have a lot of challenges when we talk to people, when we talk to the political dispensation की जो कश्मीर में चल रहा है वो जिहाद है। आप कहीं भी नहीं पता है, आपने जिहाद को जिहाद कहा, आपने जेनोसाइड को जेनोसाइड कहा। वी आर हाईली थैंकफुल। और जिस तरह से आपने हमारे मूवमेंट को, जो 32 साल की रेजिस्टेंस हम कैरी कर रहे हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल सोर्स के ऊपर है, जिसको हम कल्चरल कंटिन्यूटी कहते हैं, जिस तरह से आपने डिपिक्ट किया है मेरे भाई ने यहाँ पे, दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, दिस गिव्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू ऑल आवर एक्टिविस्ट दैट विल रिक्लेम आवर होमलैंड बैक, एंड दैट इज द जर्नी व्हिच विल क्लेम दिस लैंड। थैंक यू वेरी मच। और आपका संकल्प जो पूना में था भवन में, वो आपने पूरा किया विद द डिवाइन इंटरवेंशन। नमन। और देखिए रिलीज के दिन किया है। बिल्कुल सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग, हम इसी मोमेंट के लिए अपने दिलो जान लगाते हैं, मेहनत करते हैं। थैंक्स अ टन फॉर दिस, थैंक्स अ टन फॉर योर लव। मुझे याद है मेरी पहली मीटिंग पल्लवी मैम के साथ, जब इन्होंने मुझे बुलाया था अपने ऑफिस में, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर 700 विक्टिम्स के साथ, फर्स्ट हैंड विक्टिम्स के साथ जो उनके साथ बीता, उनकी फैमिली के साथ बीता, वो वीडियोस दिखाए थे। और मैं उसके बाद एक भी शब्द नहीं बोल पाया था। तब से लेकर फिल्म के एंड तक ये जर्नी बहुत ही टफ रही, क्योंकि मैंने कोशिश की कि इस फिल्म में मैं एक्ट ना करूं, इस कैरेक्टर को जीऊं, उसका पेन फील करूं, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ या वो जिस असमंजस में है उसको कन्वे करने की कोशिश करूं। तो मैं हर रोज़, मुझे नहीं लगता मैं किसी रात को ढंग से सो पाया, क्योंकि मुझे वीडियोस देखने होते थे इस कैरेक्टर में जाने के लिए, तब क्या हुआ 1990 में, वो सब जानने के लिए, और बहुत पेनफुल था वो।
और मैं और कुछ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग शूट कर रहे थे और हम सब एक्टर्स इतने इमोशनल हो गए कि हमें शूट रोकनी पड़ी, हमें एक एक दो घंटे के ब्रेक लेने पड़े। और एक बार तो ऐसा ही हुआ कि हमने शूट ही रैप कर दिया क्योंकि हम उसके बाद शूट नहीं कर पा रहे थे। तो जी, हम सब ने ये कैरेक्टर्स जिए हैं, परफॉर्म नहीं किए हैं, और इस तरह का प्यार मिल रहा है शायद, तो इससे बड़ा अवार्ड और इससे ज़्यादा हमारे लिए बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो थैंक्स फॉर दैट। I have a sorry एक to सेकंड, interrupt. रतन जी, I have a question. I just आपने मैं एक्चुअली जानना चाहता था कि ये पूरी मूवी जो शूट हुई आपने जहाँ पे डायरेक्ट किया, आपकी डिफिकल्टीज क्या थी, शायद आपने लास्ट इसमें बोल ही दिया, बट ये किन किन स्टेट में आपने लोकेशन सिलेक्ट किए और वहाँ के लोकल गवर्नमेंट का या वहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट कैसा था, वहाँ के जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे शायद आपने उनसे भी इनपुट लिए होंगे, तो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? ये सारी मूवी जिस लोकेशन पे आपने शूट की है वहाँ का आपका कास्ट रहा होगा, वहाँ के लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट भी रहा होगा, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और आने वाले समय में आप कैसे देखते हो कि हाउ द जर्नी विल? ये सवाल प्रोड्यूसर साहिबा बताएंगी, क्योंकि ये बताएंगी, मैं डायरेक्शन। इसके बाद रतन जी का लेते हैं, फिर अपने को 10:20। हाँ, तो रतन जी करते हैं, आपका सुन लिया, सबका एक साथ जवाब कर ले। रतन जी आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन एज ए एक्टर किया, उसके लिए सभी ने तालियां बजाई, लेकिन पल्लवी जी के लिए मैं चाहूँगा कि नेगेटिव रोल उन्होंने किया और जिस प्रकार से निभाया, जिस बात में विश्वास नहीं करते उस विश्वास के साथ जो निभाया, उसके लिए उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा। आपसे कई बार बात होती थी, आप कहते थे कि कश्मीर फाइल बना रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं इसकी चर्चा कभी हुई नहीं, मैंने भी की नहीं। एज ए जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर एक्टिविस्ट, आई हैव बीन फाइटिंग फॉर कश्मीरी हिंदूज सिंस लास्ट 16-17 ईयर्स। कई जगह भाषण दिए, कई जगह मैंने लेख लिखे, किताब भी लिखी। कभी गुस्सा आता था, कभी उनमें एक क्षोभ जागता था, लेकिन आज आपने तोड़ दिया, मुझे रुला दिया, इतना ही कहूँगा। जो लड़की ट्रक के अंदर जाती है, हेल्पलेसनेस इज बियॉन्ड वर्ड्स। थैंक यू। I'm just gonna say one sentence and then मैं विवेक जी से बहुत पहले से जुड़ा था और मैं सबको बताना चाहूँगा, विवेक जी ने मुझे एक बार एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था कि मैंने जब भी रिश्ते बनाए हैं कभी तोड़े नहीं, एंड दिस फिल्म विल नॉट लेट यू डाउन। और इन्होंने उस वक्त बोला था कि मैं एक ऑनेस्ट पिक्चर बना रहा हूँ और पिक्चर बिल्कुल अच्छी बनेगी। वो हुई। मेरी 3 डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से, पिक्चर को टैक्स फ्री किया जाए और हर कोने में ले जाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा बोब जी की डेथ कैसे होती है, अपने घर से बाहर यही बोलते बोलते कि मुझे वापस जाना है। एवरी डेथ इन एग्जाइल इज मार्टरडम। हर जो मृत्यु हुई है हमारे घर से बाहर, गवर्नमेंट उसको एक मार्टर का दर्जा दे। ये मेरी दूसरी डिमांड है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और तीसरी, विवेक जी को आज से कुछ साल पहले जब मैं एक कॉन्फ्रेंस में मिला था तो मैंने उनको एक 5 रुपये का सिक्का दिया था। मैंने उन्हें कहा था जब आपको कश्मीरी हिंदू कोई भीख मांगता मिले वो 5 रुपये का सिक्का उसे दे दीजिएगा। विवेक जी, मुझे पता है आपको कोई नहीं मिला। मेरी तीसरी डिमांड है, मेरा 5 रुपये का सिक्का मुझे वापस किया जाए। और विवेक जी, आप मेरे को छोटा भाई बोलते हैं, आज रोकिएगा नहीं, प्लीज़ रोकिएगा नहीं, मैं जो भी करने जा रहा हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे मैंने पूरी लाइफ इस लड़के ने जितना सेक्रीफाइस किया कश्मीर के कॉज के लिए, मैं आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी इसकी कहानी सुनिएगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। बहुत अच्छा। Yeah, he is a very good one. Thank you so much. Thank you. विवेक जी, मैं अब बंद करना पड़ेगा। लास्ट में एक बात पल्लवी जी बताएंगी, और मैं सिर्फ लास्ट में आप लोगों से एक ही बात कहूँगा
इसमें जैसे डायलॉग था, टूटे हुए दिल बोलते नहीं उन्हें सुना जाता है। हीलिंग की प्रोसेस का पहला चरण है एक्नॉलेजिंग दैट समबडी वॉज डैमेज्ड। तो लेट्स एक्नॉलेज वी आर ऑल वन एज इंडियंस, लेट्स बी टुगेदर। लास्ट में शी वुड लाइक टू डू अ क्लोजिंग। Sir, I would just like to appeal everybody to ask all our Hindus to watch this movie. It's our responsibility that every Indian, why every Indian? I mean, every Indian has to see it. It should reach to every global. एक सेकंड, just 1 second, last one minute. Let Pallavi do the closing, and then we will meet outside and talk for a long time. एक बार सुन लीजिए फिर because we have to shut down. it's for us who are non-Kashmiri, for them they want to be done. For we to get inspired, we have that capability, but we don't know how to utilize it. That's what she said. That's what she said. So that's one thing that That's exactly what she said. सो अब मैं हिंदी में बोलूँगी। अगर आपको ये फिल्म, जैसे कि आप सब बोल रहे हैं, अगर दिल को छू गई है, अगर आज रात को आपको लगता है कि आप सो नहीं पाएंगे, तो इस फिल्म के लिए बस एक चीज़ कर दीजिए कि आप सोशल मीडिया पे इस फिल्म के बारे में लिखिएगा ज़रूर। और मैं इसलिए ये अपील आप सबसे करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जिस तरह का भारत अभी देख रही हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे साथ इस फिल्म में वो जुड़े थे, अपने दिमाग से सोचते हैं, अपनी दिशा अभी खुद तय कर रहे हैं। तो ये जो भारत है, जिस स्वतंत्र भारत में जो वो पैदा हुए हैं, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए माँ बाप हैं उनके, तो वो जिस तरह का विचार रखते हैं, उन्हें ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और इस पीढ़ी में मुझे काफ़ी ऐसे लोग दिख रहे हैं जो नेशनलिस्टिक बातें करना चाहते हैं, फिल्में बनाना चाहते हैं, नेशनलिस्टिक आर्ट में बिलीव करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि उनके साथ किसी की बैकिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो अगर सोशल मीडिया पे हम इसके बारे में लिखेंगे, वो अगर स्ट्रेंथ देखेंगे हमारी, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ ऐसे एक नहीं, अगली जनरेशन में 10 विवेक अग्निहोत्री पैदा हो सकते हैं। विवेक जी, यहाँ पे बस एक बात मैं यहाँ आपके सामने एक बात अंतिम कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 15-18 साल से फनून कश्मीर से जुड़ा हूँ। राहुल कौल जी हैं, रोहित रवि भट्ट हैं, रोहित कचरू जी हैं, इन सबके साथ में हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किए हैं। एक खाली सुन लीजिए कि 370वां कलम जो स्क्वैश किया नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो भी एक शुरुआत है। आने वाले समय में मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस जब कश्मीर में जाके रहेंगे, उस दिन आपकी इस फिल्म का हेतु सफल होगा। मेरे दिल में जितने इमोशंस हैं, उतनी गुस्सा भी भरा हुआ है, वो जल्द ही आप लोगों को कश्मीर में ले जाके हम पूरा करेंगे।